الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسپیکر بند کرو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں. یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. میرا ملک پاکستان مطلب پاک سرزمین 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا. اتفاق ایسا ہوا کہ آج 14 اگست
2026 ہے۔ میرے ملک کو بنے ہوئے 79 برس ہو چکے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ پاک سرزمین ہمیشہ آباد رہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی اس ملک میں امن و امان کے لیے، اس ملک میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، پھر ہمارا ملک صحیح راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں تو فرد واحد اس ملک کو صحیح راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ یہ ملک ہم سب کی ایک اجتماعی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں صرف 2 ریاستیں ایسی نظر آتی ہیں جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی۔ ایک اسلامی ریاست مدینہ ہے، جس ریاست کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور ایک ریاست میرا آپ کا ملک پاکستان ہے، جو ملک 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ مدینہ منورہ بھی اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان بھی بولے اسلام کے نام پہ بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اگر کوئی کہے یا یوں ہم سے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ پاکستان کے باشندے ہیں، آپ پاکستان کے رہائشی ہیں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو میں اور آپ بڑی جرأت کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے ملک کی محبت میں جوش کے ساتھ اس سوال کرنے والے کو جواب دیں گے کہ جناب پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی گئی، مدینہ منورہ کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ تھی، اور پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو ملک پاکستان کے بنانے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ جانتے ہیں ہم جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہوئی ملتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی 100 سال تک حکومت کی ہے، اور آخری دور تھا مغلیہ سلطنت کا، اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت کو کیا آ گیا؟ زوال آ گیا۔ زوال کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان میں انگریز کا آنا۔ زوال کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان حکمرانوں کا عیاشی میں پڑ جانا، روپے اور پیسے کا
پانی کی طرح بہایا جانا، شراب اور کباب کی مستیوں میں مست ہو جانا، تو جس رب نے مسلمانوں کو یہ عظیم نعمت خلافت کی صورت میں عطا فرمائی تھی، مسلمان اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ خلافت عثمانیہ بھی اس دنیا میں گزری ہے، جس خلافت کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر تھی۔ جب باغیوں نے بغاوت کی اور جب حکمرانوں نے عیاشی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا، تو پھر یہ خلافت کی صورت میں نعمتیں مسلمانوں کو حاصل تھیں، مسلمان اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیر، میں ہندوستان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انگریز اس علاقے میں آیا تاجر بن کر۔ کیا بن کر آیا؟ تاجر بن کر۔ ایسا تاجر بنا کہ اس نے آ کر ہندوستان پر ہی قبضہ کر لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو قدرتی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا تھا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریز آیا، تجارت کا نام لے کر آیا، آہستہ آہستہ اس نے ہندوستان پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ مسلمان اور ہندوستان دونوں غلامی کی زندگی میں آ گئے، ہندو بھی غلام، سکھ بھی غلام، اور مسلمان بھی غلام۔ اب جب مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ یار انگریز کہاں سے چلا، کہاں آیا اور ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے اس پورے علاقے اور خطے پر کیا کی تھی؟ حکمرانی کی تھی۔ کیوں نہ ہم دوبارہ سے اس تحریک کو شروع کریں تاکہ ہم انگریز کو یہاں سے بھگائیں اور ہندوستان جو ہے دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ چنانچہ ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تحریکیں نظر آتی، کہیں تحریک ریشمی رومال نظر آتی ہے، کہیں جناب کوئی تحریک نظر آتی ہے۔ 1803 میں تحریک شروع ہوتی ہے، 1833 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 1833 عیسوی میں بالاکوٹ کے مقام پر انگریز سے لڑتے ہوئے وہ جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ انگریز سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ تاکہ انگریز کو یہاں سے بھگایا جائے اور ہندوستان کے جو معاملات ہیں دوبارہ سے ان کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی آپ جانتے ہیں، آپ نے مطالعہ پاکستان میں اس کو پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہاں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور اگر میں تاریخ کے اوراق اور پلٹوں، شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کے نام سے تحریک شروع کی، پھر اندر سے بغاوت پیدا ہوئی، انگریزوں نے ان کو بھی گرفتار کیا اور اس کے ساتھ 80,000 علماء کرام کو گرفتار کیا، 80,000 علماء کرام، اور جزیرہ مالٹا پہ ان کو لے جا کر ان سب علماء کرام کو سولی پہ چڑھا دیا، اور ان علماء کرام کا نعرہ کیا تھا کہ ہم نے انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے اور ہندوستان کا کنٹرول دوبارہ سے ہم نے اپنے قبضے میں لینا ہے، اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ پھر خیر، اگر اس بات کو مزید کھولوں تو مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی، وہ یہ کہ ایک وہ وقت تھا جب فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے تخت کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کو قربان کیا تھا۔ جب اس کے نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے
जो तेरे तख्ते को उलट देगा, तुम्हारी हुक्मरानी को खत्म कर देगा। इस खौफ और डर की वजह से फिरौन ने 70,000 बच्चों को कत्ल करवाया। लेकिन मेरे रब का तकवीनी निजाम और सिस्टम वो नजर नहीं आता। मेरे अल्लाह का निजाम, मेरे अल्लाह की कुदरत इस तरीके से हरकत में आती है। जिस फिरौन ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 70,000 बच्चों को ज़िबा करवाया था, अल्लाह ने उसी फिरौन के घर में उसी बच्चे की परवरिश फरमाई है जिस बच्चे ने बाद में फिरौन की हुकूमत का तख्ता उल्टाया। आप जानते हैं जलीलुल कदर पैगंबर और नबी, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से कौम याद करती है, दुनिया याद करती है। कुरान पाक में जगह जगह उनका जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ही कहां करवाई है? फिरौन के घर में। यहां 70,000 बच्चों को अपनी हुकूमत बचाने के लिए ज़िबा करवाया। और इधर हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, अंग्रेज ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 80,000 उलमाए किराम को शहीद किया। याद रखना इस बात को, जहां कुर्बानी पेश की जाती है, जहां कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद मेरे रब का कानून और ज़ाब्ता है, कुर्बानी के हो जाने के बाद अल्लाह ताला वहां अमन की और आजादी की शमा रोशन फरमा देते। फिरौन ने 70,000 बच्चों को कुर्बान किया अपने तख्त को बचाने के लिए, और उस कुर्बानी के सिले में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से जुल्म से नजात अता फरमा दी। कुरान जगह जगह कह रहा है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। कहीं कुरान कहता है या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह ने कहलवाया बनी इसराइल को कि अल्लाह ने तुम्हें फिरौन के जुल्म से, फिरौन के तसल्लुत से नजात अता फरमाई है। इस नेमत उज़्मा पर, इस आजादी के मिलने पर अपने रब का तुम शुक्रिया अदा करो। और ये अल्लाह का कानून है कि जब नेमत के मिलने पर इंसान अपने रब का शुक्रिया अदा करता है, उस मुनइम ज़ात का शुक्रिया अदा करता है, फिर अल्लाह ताला उस नेमत में और तरक्कियात के फैसले फरमा देते। उधर अल्लाह ने बनी इसराइल को आजादी अता की। जब हम अपने हिंदुस्तान की तारीख को देखते हैं, हमें यहाँ 80,000 उलमाए किराम की कुर्बानियां नजर आती हैं, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद किया। उनकी कुर्बानियों के सिले में मेरे आपके रब ने मुझे और आपको 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सूरत में, पाक सरजमीन की सूरत में इस आजादी वाली नेमत उज़्मा से नवाजा है। उधर भी कुर्बानियां हैं और यहां भी कुर्बानियां हैं। मैं यहां इससे बढ़ के एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब इन कुर्बानियों के सिला में मेरा रब कश्मीर को भी आजाद करेगा और फलस्तीन को भी आजाद करेगा इंशाअल्लाह। बनी इसराइल वाले आजाद हुए कुर्बानियां देकर, हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज से के तसल्लुत से आजाद हुआ कुर्बानियां देकर। फिर हमारा पाकिस्तान बना। तकरीबन 9 लाख मेरे आपके आबाओ अजदाद का खून लगा, उनकी कुर्बानियां इस पाकिस्तान के वजूद में लगी हुई हैं। मैं कहता हूं मेरे रब का कानून है। अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि मेरे रब ने वहां भी बनी इसराइल को आजादी दी, यहां मेरे रब ने पाकिस्तान को या मुसलमानों को भी आजादी दी। और वो वक्त दूर नहीं है जब कुर्बानियों के सिले को मेरा रब कबूल करते हुए कश्मीर को भी आजादी अता फरमाएंगे और अल्लाह फलस्तीन को भी आजादी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं है। बात समझ रहे? यहां एक और बात करता चलो।
وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے، پتہ ہے نا آپ کو، 79 سال ہو گئے، 79 سال ہو گئے کشمیر کا مسئلہ ہم حل کروا رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے، ایسے ہی ہے، قلم کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ گفتگو کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح فلسطین کو ہم آزاد کروانا چاہتے، غزہ کو ہم آزاد کروانا چاہتے، بیت المقدس کو ہم آزاد کروانا چاہتے۔ کس کے ذریعے سے؟ مذاکرات کے ساتھ۔ کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ساتھ۔ کس کے ذریعے سے؟ گفتگو کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے میرے نبی نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، جیسے پاکستان بنا، اسی ترتیب سے اللہ ان دونوں خطوں کو بھی قربانی کے ساتھ ہی آزاد فرمائیں گے، گفتگو کے ساتھ آزاد ہونے والے نہیں۔ میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے آج کچھ معروضات پیش کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی جو اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ اس کی مجھے آپ کو قدردانی کی توفیق۔ ہماری خوشی اور ہمارا جشن اس بات میں ہے کہ ہم جناب گانے بجائیں، باجے بجائیں، بے حیائی، فحاشی، اریانی، اور روڈوں پہ جناب گشتے اور روڈوں پہ کھڑے ہو کے ڈانس۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، آج جو میرا آپ کا جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے، یا آج جو کچھ میں اور آپ اپنے اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ آج زندہ ہو کر میرے آپ کے اندر موجود ہو، وہ شاید اس بات پہ افسوس کریں کہ ہم نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی جانوں کو ضائع کر لیا۔ اس مقصد کو سمجھو، مملکت خداداد پاکستان کے حصول کے مقصد کو سمجھو۔ اس وقت ہر مرد اور عورت، ہر بوڑھے اور جوان، ہر بچے کی زبان پہ یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا جو نام ہے، کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا؟ بولو یارو، پاکستان کا جو نام ہے، کیا کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا ہو کہ یار اس نام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے شروع میں اس کا نام مطلب بولا تھا، پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے اس پاک سرزمین کو گندا کیا بے حیائی کے ساتھ۔ ہم نے اس پاک سرزمین کو ناپاک کیا زنا کے ساتھ۔ ہم نے اس پاک سرزمین کو داغدار کر دیا سودی نظام کے ساتھ۔ ہم نے اس پاک سرزمین کو، ہم نے اس کو ناپاک اور گندا اور غلیظ کر دیا گناہوں کے ساتھ۔ ہونا یہ چاہیے تھا، دو قومی نظریے کا مفہوم بھی یہی تھا، مسلمانوں کے پاس ایک ملک ایسا ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ مجھے بتائیں، 79 برس ہو گئے، کہاں ہے اسلام کے اصول؟ کیا ہماری عدالتوں میں ہے؟ کیا ہماری مساجد میں ہے؟ کیا ہمارے اداروں میں ہے؟ ہمارا تو عدالتی نظام ہی انگریزی ہے۔ یہ تو اس بات پہ میں شکر ادا کرتا ہوں میرے اللہ کا، اللہ نے ہمیں جو آئین دیا ہے وہ اسلامی آئین ہے، آئین ہمارا اسلامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آئین کے مطابق اپنے پاکستان کی جو خدمت ہے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ کسی کے پاس لائٹ ہے، وہ لائٹ آن کر کے دے موبائل، اس کو رہنے دیں۔ بس ٹھیک۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے عرض کیا، پاکستان کے حصول کے لیے، اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے
उलमा का भी कत्ले आम हुआ और आम मुसलमानों का भी कत्ले आम हुआ। बोलो यारो, ऐसे है। मैंने अभी बताया कि 80,000 उलमाए किराम को सूली चढ़ाया अंग्रेज ने, है। तो इससे यह भी मालूम होता है कि पाकिस्तान के बनाने में जहां आम लोगों का किरदार मौजूद है, वहां पर बड़े सगीर और हिंदुस्तान के उलमाए किराम का भी किरदार मौजूद है। यही वजह है कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के वजूद का ऐलान होता है, कायद आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह मशरकी पाकिस्तान में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से पाकिस्तान के परचम को बुलंद करवाते हैं और कराची में अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से पाकिस्तान के परचम को बुलंद करवाते हैं। तो मालूम होता है पाकिस्तान के बनाने में जहां दूसरे लोगों का किरदार है, आम मुसलमान जहां शहीद हुए हैं, मेरी आपकी मां बहन बेटी ने अपने यूं समझे कि अपने आप को कुर्बान किया है, उनकी इस्मतों के जनाजे निकाले गए, उनकी इस्मतें दरी की गई, बेशुमार खवातीन को अगवा किया गया, छोटे बच्चों को नेजों के अंदर परो दिया गया। जहां आम लोगों की कुर्बानियां मौजूद हैं, वहां पर उलमाए किराम की भी कुर्बानियां मौजूद हैं। तो बहरहाल खुलासा यह निकलता है कि यह मुल्क पाकिस्तान हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला। बोलो यारो, ऐसा ही है? कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मिल तो गया ना, क्या हुआ? मिल तो गया ना। अब इस मुल्क की जो कैफियत है वो मस्जिद की तरह है। जैसे मस्जिद बनाने में इख्तिलाफ हो जाता है, कोई कहता है यहां मस्जिद बननी चाहिए, कोई कहता है नहीं बननी चाहिए। कुछ लोग मस्जिद बना रहे हो, कुछ लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, जब मस्जिद बन जाती है तो बोलो, जब मस्जिद बन जाती है फिर कोई उस मस्जिद को गिराने के लिए आता है? नहीं आता ना। अब तो मस्जिद बन गई, अब तो अल्लाह का घर बन चुका है, अब तो ये सबका साझा हो गया। अब सारे लोग यहां आएंगे और अपनी क्या करेंगे? इबादत करेंगे। ऐसे ही है, मस्जिद की हिफाजत होती है कि नहीं? बाद में होती है ना, बन जाने के बाद। ये मेरा आपका मुल्क जो अल्लाह ने मुझे आपको दिया है, नेमते उज़्मा की सूरत में मुझे आपको जो आजादी मिली है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस सूरत में इसकी हैसियत भी हमारे उलमा ने लिखा है कि मस्जिद की है। पहले मुमकिन है किसी को इख्तिलाफ होगा कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे रहे। वो शायद उन्होंने इस वजह से कहा होगा कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी उस वक्त हिंदू भी पुरअमन तरीके से बगैर खौफ व खतर इस हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। उनको कोई खौफ नहीं था, अमन था, क्योंकि इस्लाम की हुकूमत थी, मुसलमान हुक्मरान थे। आया अगर ये बात ज़हन में रखी जाए तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था, जब तहरीकें उठ रही थी, तो क्या हिंदुओं ने हमें माफ किए? बोलो, क्या हिंदुओं ने हमें माफ किए? क्या सिखों ने हमें माफ किए? हिंदुओं ने और सिखों ने मिलकर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा है। उनको यह बात समझ लेनी चाहिए थी कि एक वही वक्त था जब मुसलमानों की हुकूमत थी और हम अपने आप को हिंदुस्तान में क्या समझते थे? और अमन समझते थे, हमें किसी का कोई खौफ नहीं था। अगर वो ये बात समझ लेते तो कभी मुसलमानों को नुकसान। अच्छा, एक और बात आपसे पूछता हूं, जब पाकिस्तान बना है सबसे ज्यादा कत्ल गारत किसने की है? बोलो, आप बताएं, आप, मैं नहीं बोलता। किसने किया? सिखों ने किया है। और आज सिख हमारे भाई बने हुए, आज सिख हमारे भाई हैं। आज हम सिखों को अपना भाई कहते हैं। आज मुसलमान ननकाना जाते हैं सिखों का इस्तेकबाल करने के लिए। मुसलमान अपनी हिस्ट्री को भूल गया, मुसलमान सिखों के मजालिम को भूल गया। आज भी बहुत सारे मुसलमान खवातीन सिखों के घरों में उनकी औलादें पैदा करते हुए मुझे आपको नजर आती। उनको अगवा किया गया,
सिखों ने रखा अपने घरों के अंदर। लेकिन हम, फिर मुझे बड़ी हैरत के साथ और दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है, हम बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं, हम हकीकत को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारा कोई दुश्मन हो, उसके साथ सुलह हो जाए, कुछ अरसे के बाद हम उसी के साथ उठक बैठक शुरू कर देते हैं, उसी के पास बैठ के खाना पीना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये वो हमारा दुश्मन है जिसने फलां फलां मौके पे हमें नुकसान पहुंचाया था। ये मुसलमान की एक, मैं कहता हूं कि गंदी एक हिस्ट्री और आदत है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि इस मुल्क की बुनियादों में आम लोगों की तरह, बूढ़ों की तरह, नौजवानों की तरह, खवातीन की तरह, बच्चों की तरह जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इसी तरह उलमा ने भी कुर्बानियां दी हैं। और जब ये मुल्क बन चुके हैं, अब इस मुल्क की हैसियत मस्जिद की तरह है। हमने इसकी हिफाजत करनी है, हमने इसको गिरने नहीं देना, हमने इसको कमजोर नहीं होने देना। हमने इस मुल्क को जब कलमे की बिना पे हासिल किया है, तो हम सब ने मिलकर इस बात की कोशिश करनी है कि हमने इस मुल्क में इंशाअल्लाह इस्लाम का निफाज करना है। लेकिन वो बैठ के नहीं होगा, वो बैठ के नहीं होगा, वो अपनी मनचाही गुजार के नहीं होगा। हम पहले अपने आप को ठीक करेंगे तब। मैं कुरान पाक की आयत का सहारा लेता हूं। हमें क्या करना चाहिए इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए? हमें क्या करना चाहिए इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए? हमें क्या करना चाहिए इस मुल्क को हासिल करने का जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? इधर उधर की बात छोड़ता हूं, हम अल्लाह के कुरान से पूछ लेते। क्यों जी? हम अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़। ईमान वाले तो वो लोग हैं, तो जैसे सुनिएगा बात को, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ईमान वाले वो लोग हैं जब अल्लाह उनको जमीन में इक्तिदार देता है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जब अल्लाह उनको जमीन में इक्तिदार देता है, क्या करते हैं? अक़ामुस्सलाह। ईमान वालों की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? ईमान वालों की आदत क्या होनी चाहिए? ईमान वालों का उसलूब क्या होना चाहिए? जब अल्लाह ईमान वालों को इक्तिदार देते हैं, क्या करते हैं? अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़का, वो क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नंबर 2, ज़कात अदा करते हैं। व अमरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते हैं। व नहौ अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। ये मेरे रब ने मुझे आपको तरीका दिया है कि अल्लाह ने जब तुम्हें पाकिस्तान की सूरत में यह मुल्क अता किया है, मुसलमानों को इक़्तिदार मिला है, जरूरी यह बनता है कि मुसलमान इस मुल्क में नमाज का निफाज करें, ज़कात का निफाज करें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का निफाज करें, तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। इस आयत में कितनी बातें जिक्र की गई भाई? बोलो बोलो, कितनी बातें? 4 बातें। पहली बात है नमाज पढ़ना। पहली बात क्या है भाई? क्या है? जरा जुबान से बोले। पहली बात क्या है? नमाज पढ़ना। नमाज फरीजा है। बोलो बोलो, फरीजा है। किसने फर्ज की? तो बोलो थोड़ा जुबान से, नमाज किसने फर्ज की? अल्लाह ने। कितनी फर्ज हुई थी पहले? 50 फर्ज हुई थी। उम्मत पे गिरानी की वजह से, उम्मत पर मुशक्कत की वजह से मेरे रब ने 45 माफ कर दी। ऐसे ही है, 45 क्या हो गई? माफ। बाकी कितने रखी? मेरे रब ने कुरान में कहा, ऐ मेरे नबी, मैं अपने कानून में तब्दीली नहीं किया करता।
मैंने जो हुक्म तुम्हें 50 का दिया था, उम्मत पर परेशानी की वजह से, मुशक्कत की वजह से मैंने 45 को माफ कर दिया है, 5 बाकी रखी हैं, लेकिन सवाब में मैं खुदा कमी नहीं करूंगा। आपकी उम्मत अगर 5 नमाजें ही लेकर मेरी बारगाह में आएगी तो मैं खुदा उनको 50 नमाजों का ही सवाब अता करूंगा। और साड़ी हालत की है, हम अपने गिरेबान में झांकें, मस्जिद के पड़ोस में बैठकर, मस्जिद की दीवार के साथ बैठकर, मस्जिद के करीब घर होने के बावजूद 5 वक्त की अजान तेरे और मेरे कान में गूंजती है, लेकिन हम मस्जिद में आने के लिए तैयार। क्या जवाब देंगे अल्लाह के यहां? अल्लाह के यहां क्या जवाब दे होगा? मैं दर्स में भी कल बात कर रहा था, शायद जहां बच्चा बैठा भी हो, वो इशा की नमाज बच्चे ने नहीं पढ़ी, वहां कोने में बैठा रहा, और जब वहां हम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, आगे से जो गुजरता है पता चल जाता है क्योंकि बंदा गुजरा है, ऐसे है ना, तो मुझे आइडिया हो गया कि अंदर है। सलाम फेरी, मैंने देखा, पहचान लिया, बाद में उसको मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा ये अल्लाह का घर है। जी उस्ताद जी, आप भी बताएं, ये अल्लाह का, बोलो बोलो, अल्लाह का। मेरे घर में कोई बंदा आएगा तो मेरी इजाजत लेगा? समझे नहीं बात को? ओ भाई, मेरे घर में कोई आएगा तो मेरी इजाजत के साथ ही आएगा ना, मेरी इजाजत के बगैर तो मेरे घर में कोई कदम नहीं रख सकता। मेरे घर में कोई आएगा तो मेरी इजाजत के साथ, मैं किसी अरे गैरों को अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। तो ये किसका घर है? आप ही बताइए, ये किसका घर है? तो अल्लाह ताला किसी अरे गैरों को अपने घर में आने देगा? बोलो, जिसको मेरा रब चाहेगा वही अल्लाह के घर आएगा, अल्लाह उसी को अपने घर बुलाएंगे। मैंने बच्चे को यही कहा, बेटा आप अल्लाह के घर में आ चुके हैं, अल्लाह ने तुझे अपने घर में बुलाया है। आपको भी बुलाया? बोलो यारो, अल्लाह के घर में आप आ गए ना। अब मुझे बताएं, यहां आने के बाद जमात जब खड़ी हो, आप उस कोने में बैठ जाएं, नमाज ना पढ़ें, तो इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी? बोलो यारो, बदबख्ती होगी ना? है, बहुत बड़ी बदबख्ती है कि अल्लाह के घर में अगर अल्लाह ने तुझे बुला लिया है अपने घर में बुलाकर भी अल्लाह ने तुझे अगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दी, इससे बड़ी बदबख्ती तेरे मेरे के लिए क्या हो सकती? बात समझ रहे? अपने आप को खुश नसीब समझें कि अल्लाह ताला मुझे आपको अपने घर में आने की तौफीक दे रहे हैं। यह भी अल्लाह की अता है, इस पर अपने रब का शुक्रिया अदा किया करें। मैं अर्ज कर रहा हूं, इकामुस्सलाह, जब इक्तिदार मिल जाता है, मेरे रब ने कहा कि सबसे पहला काम क्या है? वहां नमाजें पढ़ो। है इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा बाजार, होना तो यह चाहिए था कि जब अजान हो तो दुकानों के शटर डाउन हो जाते, मार्केट में कोई बंदा नजर ना आता कि अल्लाह ने बुला लिया अपने घर में, यहां पांव रखने को जगह ना मिलती। लेकिन हर नमाज में हम देखते हैं कि रूटीन के नमाजी हैं, बल्कि इसका तजर्बा तो हमें रमजान में होता है। रमजान में मस्जिद भरी होती है, क्यों भाई? हर नमाज में और हर जुमे में जो ही रमजान का वो इख्तिताम का ऐलान हुआ, शवाल का चांद नजर आया, ईद पढ़ ली, वो ही रूटीन के नमाजी बाकी रह जाते। वो एक जुमला मैंने बोला था, रमजान गुजरने के बाद मेजबान रह गए, मेहमान चले गए, मेजबान रह गए, मेहमान चले गए। ओ भाई, घर वाले रह गए, मौलवी साहब दे नाल 4-5 बाबे रह गए, बस एक घर वाले सीगे ये रह गए, और जो मेहमान आए से 1 महीने दे हो चले गए। हाय, मेरा रब क्या कहता है? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ईमान वालों की शान तो ये है, जब हम उनको इख्तिदार देते हैं वो नमाजों की पाबंदी करते। क्या करते हैं?
पढ़ेंगे भाई? सारे जो पढ़ रहे हैं वो ना कहें, जिनको तो अल्लाह ने तौफीक दे रखी है वो भी तजदीद कर लें कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हमेशा। जो नहीं पढ़ते वो अज़म करें कि इंशाअल्लाह हम आज के बाद 5 नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बआतुज़ ज़का, अगला नंबर है ज़कात का। है कभी हमने अपने कारोबार का हिसाब लगाया हो, अपनी दुकान का हिसाब लगाया हो, अपनी तिजारत का कभी मैंने और आपने हिसाब लगाया हो? हाँ जी, हम लोग जो तिजारत करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई यूनिट है, वहां से जो इनकम मुझे आपको आ रही है, कोई दुकान कर रहा है, वहां से जो इनकम हमें आ रही है, क्या साल के गुजरने के बाद हम अपनी दुकान का हिसाब करते हैं? क्या कितनी मालियत का सामान इस वक्त दुकान में पड़ता है, उसका हिसाब करके साल के गुजरने के बाद उस तनासब से हम 40%, 40% अल्लाह के रास्ते में ज़कात निकालते हैं? अगर निकालते हैं तो ठीक, नहीं निकालते तो ये भी फरीज़ा है। ये भी क्या है भाई? आज लोगों को ज़कात का पता ही नहीं। मान लियो, लोगों को ज़कात का पता ही नहीं। फिर कहते जनाब मौलवी साहब हम सारा साल सदका खैरात निकालते रहते हैं। ये जुमला बड़ा अजीब लगता मुझे। हम सारा साल सदका खैरात निकालते रहते हैं। कोई बात नहीं, निकालते रहो, अल्लाह आपका सदका कबूल फरमाए। हम तो यही दुआ करेंगे ना भाई, सारा साल सदका खैरात करो, आटे की गाड़ियां तकसीम करो, राशन बना बना कर तकसीम करो, बेवा यतीमों के घरों के चूल्हे चलाओ। चूल्हे चलने चाहिए। याद रखना, जब तक हिसाब करके उन्हीं पैसों में से अगरचे आप राशन नहीं लेकर देंगे, तब तक आपकी उस दुकान की ज़कात अदा नहीं होगी। हिसाब लगाना जरूरी। हिसाब लगाएं। लाख रुपया ज़कात बनती है, राशन के पैक बना ले। लाख रुपया ज़कात बनती है, थोड़े थोड़े करके लोगों को दे दे ज़कात अदा करने की नियत से, फिर आपकी ज़कात अदा होगी। मेरा रब क्या कहता है? जब मैं ईमान वालों को इक़्तिदार देता हूं तो ईमान वालों की शान ये है कि ईमान वाले नमाजें भी पढ़ते हैं, अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो ज़कात भी अदा करते। करनी चाहिए भाई, बोलो यारो, करनी चाहिए। आगे तीसरा नंबर है अमरु बिल मारूफ। खुद भी नेकी करनी है, दूसरों को भी नेकी की दावत देनी। क्यों जी? खुद भी नेकी करनी है, दूसरों को नेकी की दावत देनी है। ये नहीं है कि बस अपनी पढ़ो तो बाकी। अल्लाह ने बंदर और खिंजीर बनाया था बनी इसराइलियों को, कुरान पाक में किस्सा मौजूद है। जब अजाब के फरिश्ते आए थे तो वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अपनी इबादत के साथ गरज थी, बाकियों की कोई फिक्र नहीं थी। अजाब के फरिश्तों ने अल्लाह से गुजारिश की, या अल्लाह इस कौम में तो वो लोग भी आबाद हैं जिन्होंने तेरी नाफरमानी नहीं की, हफ्ते के दिन में हद से तजावुज नहीं किया, या अल्लाह वो तो तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया इनको भी बंदर और खंजीर बना दो, इनके साथ बाकी उनका मामला बाद का है, अल्लाह उनको माफ करे ना करे। बज़ाहिर वो लोग भी अजाब की लपेट में आए। क्यों? वजह ये बताई गई, इनको अपनी इबादत से के साथ गरज थी, इनको दूसरी कौम की कोई फिक्र है। मेरे नबी जो फराइज़ मनसबी लेकर आए हैं उनमें ये एक फर्ज मनसबी ये भी है कि नेकी खुद भी करनी है, दूसरों को दावत भी देनी। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इस सूरत में भी अल्लाह ने कसम उठाकर ना जमाने की 4 बातों का जिक्र किया। आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाए, नेक साले अमाल किए, व तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते रहे। जनाब हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना,
ये हक बात की तलकीन है। बतवासो बिस्सब्र, खुद भी सब्र किया है, दूसरे को भी सब्र की तलकीन की है। ये उसी वक्त होगा जब बंदा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को समझेगा। और भाई बात समझ रहे, किसी भी खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए इन 4 बातों का बड़ा किरदार है। नमाज की अदायगी, ज़कात की अदायगी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अगर ये 4 बातें नहीं होंगी तो फिर किसी भी खित्ते को हम पुरअमन नहीं बना सकते। एक और बात आपसे शेयर करके बात को खत्म करता हूं। आप जानते हैं कि अल्लाह ने आले दाऊद को कितनी बड़ी बादशाहत अता फरमाई थी। आले दाऊद को यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम भी क्या थे? बादशाह थे। जब दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो कुरान में यह किस्सा मौजूद है, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हम आपको जमीन में खलीफा बना रहे हैं, हमने आपको जमीन में इख्तियार दिया है, हमने आपको जमीन में हुकूमत दी है, हमने आपको यहां खिलाफत अता फरमाई है। मौला करना क्या है? फहकुम बैनन नास बिल हक, ए दाऊद लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ के साथ फैसला करना। मालूम हुआ किसी रियासत को पुरअमन बनाने के लिए अदल और इंसाफ का होना भी बहुत जरूरी है। जब तक अदल और इंसाफ नहीं होगा कोई भी रियासत अमन तक नहीं पहुंच सकती। आगे फरमाया वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, ए दाऊद अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। अगर नफ्स और शैतान के पीछे चलोगे वो शैतान तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देगा, भटका देगा। मालूम हुआ कि जब मुसलमानों को इक्तिदार मिलना है तो जहां नमाज की अदायगी है, जहां ज़कात की अदायगी है, जहां अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म है, वहां पर यह भी जरूरी है कि फहकुम बैनन नास बिल हक, लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ के साथ फैसला करना। अगर इस बात को सामने रखा जाए, हम अपने मुल्क की तरफ निगाह दौड़ाएं। इस वक्त हमारे मुल्क में ना कोई अदल का निजाम है, ना कोई इंसाफ का निजाम। बोलो बारो, ऐसा है तो मुल्क में अमन कैसे आए? अमन कैसे आए? हमने इस मुल्क को, इस पाक सरजमीन को ऐसे गुनाहों के साथ गंदा कर दिया, जिना के साथ, शराब के साथ, सूद के साथ, झूठ के साथ, धोखे के साथ, जनाब रिश्वत के साथ और अदल इंसाफ की तचियां उड़ाने के साथ। और मैं आमतौर पे क्या करता हूं, ये कुरान अब सिर्फ रह गया अदालत में उठाने के लिए। क्यों जी? इस बात से एग्री करते? जिस कुरान को पढ़कर हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकते थे, जिसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी पर अमन बना सकते थे, अपनी जिंदगियों में सुकून ला सकते थे, जहां जिसको पढ़कर अपने मुल्क को अमन का गहवारा बना सकते थे, आज हमने इस कुरान के साथ, बल्कि ये यूं नहीं कहूंगा कि कुरान के साथ जुल्म किया है, हमने कुरान को पीछे करके अपने आप के साथ जुल्म किया। अमन कैसे आएगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने भी रियासत मदीना बनाई है, मेरे नबी ने भी बनाई है रियासत मदीना, और उस रियासत मदीना में अल्लाह ताला के क्या कहते हैं, अल्लाह के कुरान का निफाज किया है, अल्लाह के कुरान का निफाज किया है। उस खिलाफत को अल्लाह ताला की अता करदा नेमत समझा है, इसीलिए मदीना को पुरअमन रियासत बनाया मेरे आपके नबी ने। और ऐसा पुरअमन वो इलाका बना, ऐसा खित्ता बना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद भी खिलाफत उमर हो या खिलाफत उमर बिन अब्दुल अजीज हो, वहां मदीने की जमीन पर उसके बाद से लेकर आज तक दोबारा जल्जला नहीं आया। जब जल्जला आया था उमर फारूक ने कोड़ा मारा था जमीन पे और मुखातब होके कहा था, क्यों हरकत करती है, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? आज हम अगर अपने मुल्क को, इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को, इस पाक सरजमीन को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, आज हर बंदा अपने अंदर अदल और इंसाफ वाली सिफ्त को पैदा करे।
बसूरत दीगर ये महज ख्वाब और ख्याली रह जाएगी। मैं दुआ के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। मिलके दुआ करते हैं, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। कहो आमीन। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहां जो फूल खिले खिलेगा इंशाअल्लाह। कहो कहो, हम देखें ना देखें, हमारी नस्लें जरूर देखेंगी। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, वो फूल कभी मुरझाए ना। और फूल खिला हुआ अच्छा लगता है, खिला रहे अच्छा लगता है। फूल अगर मुरझा जाता है तो फिर वो फूल लगता नहीं है। हम जिस फूल को किसी को ऊपर डालते हैं खूबसूरती के लिए, किसी के गले में डालते हैं खूबसूरती के लिए, शायर क्या कहते हैं, यहां जो फूल खिले, अल्लाह करे खिले, अल्लाह करे अमन के फूल खिले, अल्लाह करे अदल के फूल खिले, अल्लाह करे इंसाफ के फूल खिले, अल्लाह करे कुरान के निफाज के फूल इस मुल्क में खिले, अल्लाह करे अच्छे और नेक साले हुक्मरानों की सूरत में इस मुल्क में फूल खिले। मिलके जब दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ने इज्तिमायत में बरकत रखी है। जब इज्तिमायत के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, अब गिड़गड़ाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क अमन का गहवारा जरूर बनेगा। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहां खजां को गुजरने की भी मजाल ना हो। कितने प्यारे शेर हैं। आओ मिलके अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह जो आपने हमें ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान नेमत की सूरत में दिया है, या अल्लाह 14 अगस्त है, या अल्लाह हम अज़म करते हैं, हम अपने आबाओ अजदाद को खिराज तहसीन पेश करते कि नहीं? क्यों जी? हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, या उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियों से आज हम इस अल्लाह के घर में बैठकर इत्मीनान के साथ और अमन तरीके से जुमे की अदायगी करने के लिए बैठे हुए। क्यों जी? ऐसा है कि नहीं? हाँ, आज 14 अगस्त की मुनासबत से चंद एक बातें यही, एक तो नमाजों का क़याम, ज़कात का क़याम, नंबर 2 अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करके उनको खराज तहसीन पेश करना, अपने बड़ों को आबाओ अजदाद को उनके लिए दुआओं का एहतिमाम करना, बेहूदगी, बेहयाई और हरामकारी से अपने आप को भी बचाना और लोगों को भी। क्यों जी? ये अज़म करके उठे, बेहूदगी से, आवारगी से, बेहयाई से, हरामकारी से हम अपने आप को भी बचाएंगे, अपने दूसरे लोगों को भी बचाएंगे, अपनी औलादों को भी बचाएंगे। अगर आज हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क इन सारी चीजों से बचा के रखेंगे और जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया है उस मकसद की अदायगी के लिए हमसे बहुत ज्यादा सुस्ती हुई, हमसे बहुत ज्यादा सुस्ती हुई, हमसे बहुत ज्यादा कोताही हुई। मिल के अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल करो। इस मकसद की आबियारी के लिए, इस पाकिस्तान को उसके मकसद में तकमील तक पहुंचाने के लिए हमसे कोताही हुई है, या अल्लाह हमें इस पर माफ कर दे, हमसे मुआफ़ज़ा ना फरमा। और आइंदा हम इंशाअल्लाह इस कोताही को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह मुल्क की सालमियत और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते रहेंगे और इसी तरह अपने मुल्क की सरहदात की भी हिफाजत करेंगे। बोलो, करे किसके साथ? अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर। वैसे तो वो कर रहे हैं, अल्लाह उन नौजवानों के जज्बों को सलामत रखे, वो हिफाजतें कर रहे हैं। हम सुकून की नींद घरों में सोते हैं, सख्त सर्दी में हम सुकून से घर में आराम करते हैं। वो माओ के जवान, वो हीरे जो माओ ने अपने मुल्क की सरहदात पर कुर्बान होने के लिए मुल्क के हवाले किए हैं, वो बर्फीले पहाड़ों पर अपनी जान जोखों में डालकर दुश्मन से मेरी आपकी हिफाजत कर रहे हैं। और सन 65 की जंग अगर हम देखते हैं
तो फौज के शाना बशाना ये कौम भी लड़ी थी, ये कौम भी लड़ी थी। और उस वक्त के जवान ने कहा था, बाबा जी पहले हम मौजूद हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, अगर हम न रहे तो फिर तुम आ जाना मैदान में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हाँ, हम अपने मुल्क की सरहदात की हिफाजत भी करेंगे, अपनी अफवाज पाकिस्तान के कदम के साथ कदम मिलाकर इंशाअल्लाह। ये सारी बातें मैंने आज के दिन की मुनासिबत से आपके सामने जिक्र की हैं। आओ मिल के अज़म करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने में और इस मुल्क को दुनिया में तरक्की पर ले जाने में जहां तक मेरा आपका हक हुआ, मेरी आपकी कोशिश हुई, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे और अपने अल्लाह से भी मांगते रहेंगे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।